پہ کیا کہیں گے کہ پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں پیش کیا نہیں کیا۔ آج دیکھیں لوگوں کو آپ یہ ساروں کو روک رہے ہیں باہر، نہ فیملی کو آنے دے رہے ہیں، اور کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ جج صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سا ہمارا لیگل سسٹم ہے کہ آپ کسی کو اندر نہیں گھسنے دے رہے، کس چیز سے ڈال رہے ہیں۔ اچھا، مخصوص پاسز بھی آج آج جاری انہوں کیے نے گئے ہیں۔ سارا کچھ بند کر دیا۔ اب سوچ رہے ہیں کہ عدالتیں ڈر رہی ہیں اپنے لوگوں سے، جن کو انہوں نے انصاف دینا ان سے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگوں کو اندر سے نہیں دیکھنے دے رہے ہیں۔ اچھا، مخصوص پاسز آج جاری کیے گئے ہیں کمرہ وہ عدالت کے لیے، اس میں کیا وہ خود بیٹھ کے لسٹیں چن چن کے اندر آنے دے رہے ہیں۔ یہ بالکل یہ کورٹ کو پتہ ہے کہ یہ انلیگل بات ہے، یہ روک ہی نہیں سکتے لوگوں کو۔ اگر وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا عمران خان کے اوپر میم آج ایسی دوبارہ پرسوں میں نے جانا میم یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے عمران خان نے بہت محنت سے بنائی ہے، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں فارورڈ بلاک جو ہے وہ بن گیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی سے جو ہے وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ فارورڈ بلاک جو بن گیا ہے، جیسے شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں، کوئی دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ فکر کریں کہ یہاں پہ عمران خان، ہماری جو فکر ہے یہ ہے کہ عمران خان شاہ محمود قریشی 10 سال کے لیے قید ہیں، اور آج جج جو تھے ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کاغذ کسی نے دیکھے، نہ پروسیکیوشن، نہ ڈیفینس نے، نہ ججز نے، اور 10 سال کی قید ان کو دے دیا۔ اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے؟ اور یہ رانا ثناء اللہ جو 15 جو وہ تو خود تو ہارا ہوا ہے، لیکن جو وہ اس کی جماعت ہے نون لیگ 17 سیٹوں کے ساتھ جیتی ہوئی، باقی سارے چوری کیے ہوئے لوگوں کی سیٹیں چوری کیے ہوئے چل کے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جرت کہ وہ بیٹھ کے یا ان کے جو یہ ٹاؤٹس بیٹھ کے عمران خان کو دھمکیاں جان کی دے رہے ہیں۔ کیا یہ نون لیگ کے ذمہ لگا ہے عمران خان کو ختم کرنا؟ یہ اس کے ذمہ لگا ہے؟ یہ 17 سیٹوں والی جماعت کی یہ پریشانی ہے کہ ہمارے پاس صرف 17 سیٹیں ہیں، اور عمران خان کو جس کا دل کرتا ہے خود آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جان کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ یہ بدماش ہے رانا ثناء اللہ۔ اس کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے، آرام سے بیٹھے رہنا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو انہوں نے ہرایا ہے وہ تو وہاں کے ہارا ہوا آدمی ہے یہ رانا ثناء اللہ، فیصلہ آباد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اسی نے یہ سائفر کی یہ احمقانہ کیس کیا تھا، اور یہ اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کا یہاں بس نہیں چلا ایف آئی آر سے، تو اب یہ عمران خان کو جان کی دھمکیاں دے گا، یا مریم اورنگزیب جن کی فیملی کو ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں میں ان کو جانتی ہوں، اور یہ اس بیچاری سے کیا کیا کروا لیا بیچاری مریم اورنگزیب سے، اس سے کیا کروا رہے ہیں؟ بیچاری ہے میں، یہ کون ایسی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے سارا دن، مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے۔ اچھا، تو میڈم یہ بتائیے گا کہ لیکن اگر یہ دھمکیاں دیں گے عمران خان کو، عمران خان کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا؟ اگر یہ دھمکیاں دیں گے، یہ ہاری بھی پارٹی، پھر سے میں کہوں گی ہاری بھی پارٹی 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، اور یہ اس ایک عظیم شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ شاہ محمود بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال کی، آج میرے خیال میں جو ہمارے جج صاحبان تھے جنہوں نے آج کورٹ بند کر دیا، انہوں نے کہا 25 لوگ سے زیادہ اندر ہی نہیں آ سکتے یہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایس جو یہ نہیں روک سکتے، ان کو اگر وہ کارڈ دکھائیں وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے آج آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کہ جب تک 25 لوگوں کی لسٹ نہیں ہوگی ایم این ایز ایم پی ایس کے اندر نہیں آنے دیں گے، صرف 25 کو اجازت ملی تھی، باقیوں کو باہر ٹھہر جائیں، باہر روک دیا۔ تو آج اگر آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کورٹس کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے 17 سیٹوں والا ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو جان کی دھمکی دے گا، تو میرے خیال میں میڈم آپ کو ایف آئی آر نہیں کٹوانی چاہیے؟ ہم ایف آئی آر ہیں بہت نہیں کٹنے، ایک سیکنڈ ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو ہم ہر شہر میں ڈالیں گے، فیصلہ آباد میں ڈلے گی، لیکن وہ اگر کورٹ آپ کے ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ حکومت تو 17 سیٹوں والی
पार्टी की है ना, पख्तूनख्वा में करा दें मैडम। सब जगह डलेगी, FIR इनके ऊपर डलेगी। ये अगर इन थ्रेट्स को संजीदा लें, हाँ इन थ्रेट्स को संजीदा ले रहे हैं आप लोग, ये जो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? हम संजीदा ही ले रहे हैं ना, हम संजीदा ही ले रहे हैं जो FIR दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह को फिर मैं घर मिलने जाऊंगी फिर इनके, ईद लग रहा है कि समझा कर आऊंगी। ईद से पहले अगर आइंदा अगर वो माफ़ी ना मांगी उन्होंने तो हम उनके पास जाएंगे, उनके घर उनको मिलने, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से मिलेंगे। राना सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह की फैमिली से मिलेंगे ना, हम उनकी फैमिली है इमरान खान की, हम इस तरह उनकी फैमिली को, अगर उनकी बहनें हैं उनके बाकी उन्हीं से मिलेंगे ना। उनको मिल के ये पूछना चाहेंगे कि आपको अल्लाह का खौफ है तो इस शख्स को कंट्रोल करो, अगर ये कत्ल करने का सोच रहे तो ये सोचें, आप भी सोच लें कि आप औरों के भी घर वाले हैं, वो अकेले नहीं है इमरान खान। अच्छा ये बताइए इमरान खान से आप मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी को भी इजाज़त नहीं दी गई उनके उनसे मुलाकात की। ये देखें, ये मरियम नवाज़ की हुकूमत है इस वक्त 16 सीटें वाली, मेरे ख्याल में 17 सीटें मैंने ज़्यादा, मुबारकबाद ही मैडम ने 16 सीटें वाली हुकूमत है। अब ये बेचारी ये यही करेगी हरकतें, पैनिक करेगी, इमरान खान का दरवाज़ा बंद कर दो, जेलें बंद कर दो। मरियम नवाज़ ताकि विज़िट कर रहा है, उसको अडयाला भी देखा है, वो कोट लकबत तो हुआ ही है चक्कर लगाने, इससे काम नहीं चलेगा, इनसे ये चल ही नहीं सकता, ये कितने दिन चला लेंगे, हम घर तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो मरियम नवाज़ को थोड़े दिन ये कर लेगी, कितने दिन 16 सीटों पे नहीं चल सकती। मैडम को एस्टैब्लिशमेंट से कोई पैगाम आपकी तरफ तवज्जो से या कोई मुज़ाकरात की? देखें, मुज़ाकरात छोड़ें, इस वक्त केस है यहाँ पे, इमरान खान को कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए बस, और शाह महमूद की जो यहाँ लगी हुई है अहमकाना केस है। जज भी आज इसके ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही थी कि केस किस चीज़ के ऊपर किया हुआ है। अच्छा, तो जब नहीं पता किसी को कि केस किस चीज़ पे है तो ख़त्म करें कन्विक्शन, बस कर दें ये ड्रामा। वो बेचारा वो यहाँ तो उस नहीं वक्त करेगा, सामने मगर आके मैं बात अपने नाम से पेशावर में इंशाल्लाह परसों जा रहा हूँ। इमरान खान को धमकियाँ दे रहे हैं, उसको पता नहीं वो क्या सोच रहा है कि कोई कत्ल करना या ये चीज़ें वो क्या वो बता कुछ रहे हैं। इंशाल्लाह नहीं कर सकते, कत्ल अगर करना जा रहा है, क्या कर ऐसा कुछ कर नहीं सकते इंशाल्लाह। लेकिन देखिए अच्छी बात यह है कि आज छठा दिन है और तकरीबन अब साइफर की अपील को ऑनरेबल जजेस को सुनते हुए तकरीबन 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। जो अगर आप मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो केस अब तकरीबन कंक्लूड होने के करीब है, क्योंकि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, फॉरेन ऑफिस की वर्किंग है और पूरे साइफर के मैकेनिज्म को समझना होता है। जजेस ने ये एहतियात से करने का एक मरहला है, हम उससे गुजर रहे हैं इस वक्त। और आज बड़े तहम्मुल से तमाम एविडेंस जो है फॉरेन ऑफिस के गवाहान का, वो आज जजेस को पढ़ के सुनाया गया और उन्होंने बाज़ एस्पेक्ट्स को एविडेंस को समझा, इसकी मूवमेंट को समझा, इसके गार्डियंस कस्टोडियंस को समझा और कुछ सवालात उन्होंने उठाए जिस पर मैं उनको असिस्ट करता रहा। सो अब दोबारा मामला साइफर की अपील का कल तक के लिए मुलतवी है। रमज़ान एक फैक्टर है, मगर फिर भी ऑनरेबल जजेस रोज़ाना 2 घंटे हमें देते हैं और इन 2 घंटों में हम इस सारे प्रोसेस को बड़े तहम्मुल से हम भी इसको आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का सबसे सीरियस और संजीदा इल्ज़ाम और मामला है। सो इस पर उसी संजीदगी से असिस्ट भी करना चाहिए। सो अब उम्मीद करते हैं कि कल के दिन तक तमाम एविडेंस मुकम्मल हो जाएगा और कल बाकायदा मैं अपने सबमिशंस का, जिसको हम क्लोजिंग स्पीच कहते हैं, फॉर्मुलेट करूंगा और तमाम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि साइफर का केस 1 नहीं तो 2 पेशियों पर कंक्लूड होने जा रहा है। आज के जो सवाल थी उसमें कौन सी अहम रिमार्क्स जज साहिबान की जानिब से दिए गए और क्या सरकार की जानिब से मुतमईन किया गया जज साहिबान को? देखिए, एक तो आज एडवोकेट जनरल ऑफिस आज नहीं मौजूद था, जेल अथॉरिटीज से कुछ रिपोर्ट्स तलब की हुई थी उन्होंने,
आज वो भी नहीं आई थी, जिस पर जजेस ने दे वर नॉट टू हैप्पी विद इट कि वो टाइमली क्यों नहीं मौजूद थे, जबकि कितना इम्पोर्टेंट केस जो है वो सुना जा रहा है इस वक्त। मगर साथ ही साथ में जो वर्किंग है सारे प्रोसेस की, बाहर से मैसेज आने की, यहाँ रिसीव करने की, उसकी कॉपियाँ बनने की, उसके इंचार्ज, उसके कस्टोडियंस, ये कैसे सारा प्रोसेस होता है, किस हद तक डॉक्यूमेंट शेयर होता है, क्या टाइम लाइन्स हैं, कब दी जाती है, कब वापस आती है, तो ये तमाम बातें आज अपील में हुई। सो आज आई एम श्योर जज साहब के आगे काफ़ी क्लैरिटी है, दोनों जजेस के आगे, कि ये साइफर की मूवमेंट क्या है और इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं, लॉ क्या है जो साइफर के सारी मूवमेंट को और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और इसकी डिस्ट्रक्शन को रेगुलेट करता है जो कानून। आज उस पर काफ़ी मावनत जो है वो हमने जजेस को दी। सो वंस अगेन मामला सब जुडिस है, मामला इस वक्त नियरिंग इट्स कंक्लूजन है, मामला नियरिंग इट्स लॉजिकल कंक्लूजन है। हम उम्मीद करते हैं कि द आर्ग्यूमेंट्स विल फाइंड फेवर और बोथ द अपेलेंट्स विल बी ऑनरेबली acquitted from the charges इंशाल्लाह। ये फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हम करने वाले हैं। थैंक यू। अगर एक्विटेड नहीं होता तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होंगे? मैंने उस ऑप्शन के मुतालिक ना सोचा है, ना मेरे ज़हन में आती है एक्विटल, आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन क्या सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अदालत की जानिब से? ऐसा कभी नहीं सोचता, दैट्स नॉट माय वे ऑफ थिंकिंग। दिस इज अ केस ऑफ एक्विटल एंड देयर विल बी एक्विटल। जिस तरह लग रहा है जिन टेक्निकलिटीज पे खेला जा रहा है उससे तो वो रिमांड बैक के चांसेस लग रहे हैं। अब मुझे ये लगता है आप जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं, आप रिमांड के ऊपर सवाल पूछते हैं, जब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लेकिन जब एक अपील को सुनते हुए इतने दिन हो चुके होते हैं, ये हरगिज रिमांड की तरफ नहीं जा रहा। आपका सवाल हमेशा रिमांड की तरफ आप ले जाना चाहते हैं और कोई नहीं जा रहा, बस सिर्फ मामला ये है कि हमें माजी में देखा बल्ले का निशान अदालतें ऐसे ही कर रही हैं जिसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एडजुडिकेट कर रहे हैं दोनों जजेस और हम भी एहतियात से चल रहे हैं। सो इंशाल्लाह शायद हमारे सवालों से नई राहें खुले इसलिए सलमान सफदर साहब, आपने 25 रमजान की बात की थी कि खान साहब की रिहाई हो सकती है, दीगर मरवत साहब भी कह चुके हैं, तो क्या अभी आप उस बयान पर कायम हैं? मैं अभी भी ये कहता हूँ, आप हमें कोई से 3 दिन, अब मैं कह नहीं सकता, और लोगों का हक नहीं मारना चाहिए, और लोगों के मामलात भी लगे होते हैं, रमज़ान का फैक्टर भी है। ये भी बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रमज़ान में क्या टाइम हो गया है, 4:05 तक जजेस ने केस सुना है। हम सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनका। रमज़ान फैक्टर एलिमेंट है, मगर साइफर इट्स नियरिंग इट्स कंक्लूजन। स्ट्रेट अवे मंडे को तोशा खाना की अपील फिक्स्ड है, वो भी 1 दिन की अपील है, इससे ऊपर उसको टाइम नहीं है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि ये ईद से पहले रमज़ान के अंदर ही खान साहब के तमाम केसेस जो हैं वो डिसाइड हो सकते हैं, और उन सब केसेस में मैं एक्विटल देख रहा हूँ। पहला केस ही सबसे इम्पोर्टेंट केस है साइफर का जो इस वक्त चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जो साइफर में होगा वही बाकी केसेस में होगा। थैंक यू। थैंक यू। सर 1 मिनट दे देंगे मुझे, मैं ज़रा सर से 2-4 सवाल आते हैं, थोड़ी सी जगह दे दें। मैं क्या अपने जियो वाले ना जी हाँ जी हमारे लिए थोड़ी सी जगह दे, एक छोटा बड़े अरसे के बाद सर पकड़ लिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर आपकी पार्टी के अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले तो वो आपकी पार्टी ठीक है, वो हैसियत वज़ीर आला मिले, लेकिन एक स्टार शायद आफरीदी हैं, अगर वो उनको पिछली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पे मुबारकबाद दें तो आपकी पार्टी की सोशल मीडिया टीम रहनुमा पीछे पड़ जाते हैं। ये इख्तलाफ राय पर इत्तफाक क्यों नहीं किया जाता, या आप करें ठीक दूसरे करें गलत? नहीं, इत्तेफाक राय पे ही नहीं है, वो है इख्तिलाफ राय पार्टीज़ में होती है और सारे लोग अपने अपने राय का इजहार करते हैं, और जो पॉलिटिकल आपका ऑफिशियल साइट है वो भी सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, पार्टी के सारे लोगों के लिए। अगर उसमें भी कोई इजहार करता है तो उनकी अपनी राय है, हम किसी के खिलाफ वो ट्रोलिंग नहीं करते। इजहार में और ट्रोलिंग में हम फ़र्क करेंगे ना? नहीं, देखें, 1-2 बंदे अगर आपके खिलाफ कोई राय दे दे तो सोशल मीडिया पे ये होता ही रहता है, इट्स अ मॉडर्न टाइम, वो लोग करते रहते हैं, डेमोक्रेसी में ऐसा ही है, यू मूव ऑन। पीछे आप नहीं देखते किसने आपके खिलाफ क्या कुछ बोला है, एक्सेप्ट देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट यू। लोग आपसे एग्री भी करते हैं, लोग आपसे डिसएग्री भी करते हैं, यू मूव ऑन। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज
जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए आफ्टर द इलेक्शन हमने जो स्टैंड लिया है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट में रोल अदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़े डिस्पाइट और रिजर्वेशन कि हमें तो इनका मैंडेट कबूल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंडेट चोर बैठे हुए हैं, तो इसलिए इसके बावजूद हम चाह रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़े। सर ये खुशाइंद है सब, लेकिन एक बयान को मंसूब किया जा रहा है शाहिद आफरीदी से, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि 9 मई में जुडिशल कमीशन बनाए, जो भी किरदार है उन्हें सजा दीजिए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई मिलता है, शाहिद आफरीदी ने भी अगर 9 मई की मजम्मत की है तो उसको ट्रोल करने नहीं, देखिए मैं नहीं समझता ये ट्रोलिंग है, मैं नहीं समझता कि ये ट्रोलिंग है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर 1-2 बंदे आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, इसका मतलब है कि पार्टी ने उसके खिलाफ भी स्टेटमेंट दे दी और पार्टी किसी एक बंदे के खिलाफ हो रही है। ये होता ही रहता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, आप अपनी ही सोशल मीडिया पे देखें, क्योंकि बिकॉज सोशल मीडिया का ऐसा कानून है कि अगर आप अपनी ही फेसबुक पे दे दें तो अपने फेसबुक पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि उन पे कौन लोग होंगे जो कमेंट करें और कौन लोग हैं जो कमेंट ना करें। फेसबुक या सोशल मीडिया जो है वो आपके ग्रेवयार्ड, आपके बैकयार्ड की तरह नहीं है कि आप उसको कंट्रोल करें। तो लोग कहते रहते हैं उसका पार्टी के जितने भी सोशल मीडिया पीटीआई ऑफिशियल से होने वाली सरगर्मियों को ऑन करते हैं, ऑन करते हैं पीटीआई ऑफिशियल के जो आपस में स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप किसी के खिलाफ दें, किसी के हक में दे दें। अगर वो वहाँ से कुछ लोग देते हैं, ये उनकी राय है और कदर करनी चाहिए। बताइएगा कि अगर क्योंकि एक अरसे से ताल्लुकात आपके और एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी के ख़राब रहे, तो क्या समझते हैं कुछ अगर कोई मुज़ाकरात हों या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें मुल्क की बेहतरी नहीं होगी? देखो, हम तो बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ये मैंडेट भी लेते हैं और इलेक्शन इतना बुरी तरीके से ये लोग फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट करके एक नया मैंडेट लेके आए, तो उसकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए कि वो कौन लोग करा रहे हैं और किस तरीके से हुकूमत का मैंडेट लिया गया, उन लोगों से मैंडेट लिया गया जो एक्चुअल विनर थे और लूज़र आ गए और बैठ गए। तो इसी तरफ आगे सोशल मीडिया टीम ऑफिशियल किसी को कोई गाली नहीं देती है, इंडिविजुअल का हम लोग कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं देते। जो हरासा किया जाता है मुसलसल, वो नहीं, इंडिविजुअल्स का हम लोग किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सोशल मीडिया टीम हमारी जो ऑफिशियल है वो किसी के अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कि 9 मई जलाओ गहराओ में ये हुकूमत मुलविस है, हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं और इसमें जो भी मुलविस हो उसको सजा दीजिए, अगर कोई हमारी पार्टी में भी हो। अगर शाहिद आफरीदी इसी तरह का बयान दे के 9 मई के किरदारों को सजा हो तो बुरा क्या? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हर जगह पे यही बात की है, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि ही बिल्कुल जुडिशल कमीशन होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। तो शाहिद आफरीदी तो फिर अटैक क्यों? ये तो खास मकसद नजर आ रहा है आपको? पीटीआई ऑफिशियल ने किसी को अटैक नहीं किया। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊँ ना, एक तो डिसइंफॉर्मेशन चलती है बहुत ज़्यादा। यानी अभी मुझे किसी टीवी चैनल ने बताया कि जो अपोजिशन लीडर की जो इस वक्त तैनाती नहीं हो रही है, तो टीवी पे चल रहा है कि स्पीकर को मेरा बार बार कह रहे हैं कि वो इसमें हटल। अल मैंने 2 दफ़ा सादिक से बात की कि जल्द अज जल्द जो है अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन निकालो, और उन्होंने मुझे कमिट किया है कि यकम को हम इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस करके यकम को मैं कोई इसकी आवाज़ आने से जो ना आवाज़ उठाऊँगा। मैंने इसको कैटेगरी कहा और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने उसको अनाउंस किया एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। यानी ये मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर जेन्युइन खबर चलाएंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट होगी, और कोई डिसइंफॉर्मेशन चलाएंगे कि वो यूट्यूब है हमारा और यूट्यूब की जो है रेटिंग बढ़े और इसकी वजह से जो है ना आप वो मनफी खबरें चलाए, तो ये मुनासिब नहीं है। आप बात जो है ना एक आपकी सहाफत की ये तकाजा है कि आप जो है ना हक़ को सामने रख के बात करें, तो माशरे में इख्तलाफ से जिंदा रहा जा सकता है। बिल्कुल इख्तलाफ में देखिए, आप मुझे बताएं ना, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने एक खबर चलाई जिसमें कोई हकीकत नहीं थी। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, गलत खबर नहीं चला सकते। बोझ की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कहता मैं किसी और को, किसी को गद्दार बना के, किसी को वो वफादार बना के नहीं। जो इस वक्त हमारी जंग है वो जंग है पाकिस्तान के सामने, और उस जंग में आप लोग हमारे साथ शामिल हो ताकि इस मुल्क को देखें। या तो ये मुल्क में जो है ना एक इस मुल्क में जिस तरह एक डिक्टेटरशिप और जिस तरह एक मनार्की की तरफ मतलब जो जा रहा है, जिस तरह इसको रोकना है। सही जमहूरियत हमने इंट्रोड्यूस करना है, और वो सही जमहूरियत हर शहरी का हक है कि उसको हक मिले कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करे, या किसी को हक मिले कि वो अपनी जो सोच के मुताबिक किसी पार्टी में शामिल हो, उसको हक मिले कि वो अपनी कैंपेन चलाए, अपने नजरिए अपने सिलसिले के मुताबिक चले। लेकिन अगर आप जो है ना ये इस तरह नहीं होगा तो आप यकीन रखें ये मुल्क जो है ना अभी तो ये एक फासिस्ट हुकूमत है। सर ये बड़ी मुस्बत बात की जमहूरियत में
इख्तलाफ एक चीज़ है और डिसइंफॉर्मेशन दूसरी चीज़ है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाई जाए। इख्तलाफ अगर आप हमारे एक फैसले से मुत्तफिक नहीं है तो इख्तलाफ। अच्छा, दूसरा ये कि आपकी जमात के अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म से मिले, वो ठीक है, लेकिन शाहिद आफरीदी एक क्रिकेटर हैं, अगर वो वज़ीर आज़म बनने पे किसी को मुबारकबाद दे दें तो वो कैसे मुल्क दुश्मनी हो सकती है, वो कैसे खराबी हो सकती है? उसका एक स्टार है, वो किसी को भी मुबारकबाद दे तो इसमें खराबी तो नहीं है ना? यानी आपके साथ इत्तेफाक करना ज़रूरी है। इत्तेफाक ना करेगा वो तो वो मुल्क दुश्मन भी है, वो पार्टी के खिलाफ भी है, वो गद्दारों को इसका साथ दे रहा है। ये रविश क्यों है? नहीं, मैंने तो शायद अपनी की कोई स्टेटमेंट नहीं की है, न मैं उसकी सोशल मीडिया में कभी कभी चीज़ें देखती है तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हूँ उसके हवाले से तो मैं कोई कमेंट्स करूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान जो है ना इस खून की जंग है, यानी ये आप सबकी जंग है। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है कि मुल्क में कानून की हुक्मरान है, मुल्क जो है ना एक आज़ाद पाकिस्तान जो है उसकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए, पाकिस्तान को कोई डिक्टेशन ना दे। आपको इसके साथ हज़ारों इख्तलाफ सही, लेकिन जो वो एक कौमियत की बात करती है, पाकिस्तानियत की बात करती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम को इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग नहीं खड़े होते तो आप देखिए, आप एक सोच के साथ खड़े होते हैं, आप इमरान खान के साथ नहीं, एक सोच के साथ खड़े होते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त आप लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो, अगर आपने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कि हमारी सॉवरेनिटी जो है ना वो किसी तौर पर खड़ा है। तो जो इमरान खान के साथ खड़ा नहीं